Namaskar and a very good evening to all lovers of literature present here today. On behalf of the Taj Swarna, the PKI Foundation and the Ehsaas Women of Amritsar, I welcome you all to the second edition of Kalam. Kalam is an initiative of the Prabha Khaitan Foundation, a Kolkata-based NGO engaged in various social welfare activities and the promotion of Indian culture. Kalam was started in the summer of 2015 in Jaipur, primarily as a session of conversations with a selected author, covering his or her entire range of work, as opposed to a book signing or a book launch or a book reading. Almost from the first session, the series gained immediate acceptance from the audience. And of course, the featured authors really encouraged us to keep the series going. The series was then extended to other cities like Raipur, Bilaspur, Udaipur, Hyderabad, Bangalore, Ajmer, Mumbai, Patna, and so on. It's also gone to London. It's my honor and privilege to welcome the talented guest author today, Irshad Kamil ji. इरशाद साहब की गीतकारी, ये गीतकार के सुल्तान हैं, इनके बारे में जो कहें वो कम होगा। इनके गीतों में बेहतरीन इमोशन है, विचारों की गहराई है, शरारत है, रोमांस है और सूफियाना ख्याल भी है। He has won the prestigious Filmfare Award 3 times. He has written 4 books, one of them is here. Please pick up a copy for yourself when you leave. And we have all hummed his songs at some time or another. हम सब ने इनके गीतों को गुनगुनाया है। बहुत सारी फिल्में हैं जिनका मैं किन्हीं फ्यू का नाम ले रही हूँ। टाइगर जिंदा है, ज़ीरो, सुल्तान, आशिकी 2, हाईवे, रॉकस्टार, जब वी मेट. His songs have pulled at our heartstrings. गली गली में ये गुनगुनाए जाते हैं, सबको सुनाई देते हैं. मेरा अपना रेडियो भी पूरे दिन चलता है. Without further ado, let me introduce you also to our very own Ehsaas woman today, Jasmeet Nayyar, who is going to take forward the conversation. She is the former principal of GCW, and she has various other educational and academic qualifications, which I don't want to go into right now. She's a scientist by training, but she's an artist at heart. She's a lover of poetry, of literature, music, and is a storehouse of talent. If you visit her house, you will know exactly what I mean. So before going any further now and taking up time, I'd like to invite both of you to please take your place here and let's begin the session. And audience, please put off your phones, sit back, relax. आज के मेहमान इरशाद कामिल. बेशतर लोग यहाँ उर्दू से वाकिफ हैं, लेकिन कुछ ना वाकिफ भी हैं. मुझे लगा मैं बताती चलूँ, इरशाद एक अरेबिक वर्ड है और बहुत से मायने थे. मुझे अच्छा लगा फरमाना, सही बोला. और कामिल इज ऑल्सो अरेबिक. I found it as perfect. यही बहुत कुछ बोल देता है. और 5 सितंबर भी कुछ it rings a bell. महीना भी वही चल रहा है और वर्गोन्स होते भी टैलेंट से, आर्ट से भरे हुए होते हैं. मोस्टली, नॉट ऑल. अब इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत सी लाइन लिखी है. कामिल किस्से प्यार के ज्यों वीणा के तार. कामिल किस्से प्यार के ज्यों वीणा के तार. छोड़ो तो मन प्राण में कर देते झंकार. अब वाकई इनके गीत सुनो तो कुछ होता तो जरूर है. बहुत सारे अवार्ड्स लेने वाला ये यंग मैन मेरे पास बैठा है. 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स, 2 ज़िने सी अवार्ड्स, 3 जीमा अवार्ड्स, शैलेंद्र अवार्ड, साहिर लुधियानवी अवार्ड, कैफी आजमी अवार्ड और 12 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स. कभी सुने आपने? और
भी हैं। आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड। That's what बहुत सी किताबें हैं, 4 किताबें हैं, अभी उम्र छोटी है, न जाने कितने लिख देगा। समकालीन कविता और समय और समाज, ठीक बोला। दूसरी किताब बोलती दीवारें, जो कि एक प्ले है। देन ही रोट एक हसीन। जब मैं ये देख रही थी मुझे लगा कोई बहुत काली सी औरत होगी, उसको सपना आता होगा, लेकिन जब पढ़ी तो समझ में आया कि सपना तो इनको आता था। इनको एक सपना बराबर चलता रहा in his initial days when he was still trying to find his ground, कि एक काली औरत खड़ी है यूं हाथ करके, और वो बराबर इनको सताता था। ये जरा आप हमें उसके बारे में बताएं, वो बंद कब हुआ काली औरत का ख्वाब? जी, अदरवाइज सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए सुनने के लिए, बात करने के लिए। काली औरत का ख्वाब कब बंद हुआ? मुझे लगता है काली औरत ही एक ऐसी औरत है जिसका ख्वाब कभी बंद नहीं होता किसी को, खासकर उसको जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। अब सवाल ये है कि ये काली औरत कौन है? सवाल यह है कि ये काली औरत कौन है? ये काली औरत वही है जिसको उठाने के बाद छोटे से एक कह लीजिए कस्बे का बच्चा या नौजवान इरशाद कामिल मलेरकोटला से चलता है और वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं काली औरत को उठाऊंगा और कहूंगा थैंक यू पेरेंट्स, तो ये वो काली औरत है। और ये वैसी काली औरत है कि घर में अगर आपके औरत हो या बीवी हो, इस काली औरत से किसी को कोई ना तो नुकसान है और ना एतराज है इसके घर पे आने में। अगर आप ज़हन करेंगे ना, ध्यान करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा हाफ स्केच है बुक के साइड पे, ये वही चीज है ना? जी जी जी, आधा ही बनाया, समझ लीजिएगा। तो ये ख्वाब लगातार चल रहा है और लगातार आ रहा है और अभी भी आता रहता है, बिकॉज यू ऑलवेज ट्राई टू compete with yourself। आपकी लड़ाई बाहर किसी से नहीं है, मुझे हमेशा ऐसा लगा है। आपकी लड़ाई अपने साथ ही है, अपने अंदर के साथ ही है। आपकी कलम अपनी ही लिखावट को बेहतर करने के लिए हमेशा चलती है। अपने आप को ही अचीव करना चाहते हैं आप। जब अपने आप को अचीव कर लेते हैं, वो मुझे लगता है अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि अच्छा शायद कुछ अच्छा लिखा गया, 2 लाइनें बड़ी अच्छी हो गई आज, वो जहन में रहती हैं और वो दिन बहुत खूबसूरत लगता है आपको। वो आप जहां भी जिससे भी मिलते हैं, वो इंसान आपको अचानक से खूबसूरत दिखाई देने लग जाता है जब आपने कुछ अच्छा किया होता है। तो ये ख्वाब लगातार चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। मैं तो कहता हूँ चलता रहे, मतलब जब तक तो ये अभी भी आता है ख्वाब। सही। इरशाद कामिल उस जद्दोजहद की पेशकश हैं जो बेशुमार कवि, गीतकार, कहानीकार, कलाकार करते हैं। सपने पूरे करने की हिम्मत उनका हासिल, और वो भी फिल्मिस्तान की दुनिया में। खास जिक्र है इनके माध्यम से कि मयार नहीं गिरने देना, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ज्यादा बेशतर लोग बिकाऊ हो जाते हैं जरूरतों के तहत। इन्होंने इनकार किया अश्लील गीत लिखने से। बहुत सी ऑफर्स आती हैं सब जगह भी, नो। और फिर हर टाइम एक सीखने की जो चाहत होती है वो आपको बहुत आगे ले जाती है। ये कहते हैं कि मैं आज भी विद्यार्थी की तरह सीखने की चाह बार बार रखता हूँ, और जब समय इजाजत दे तो मौलाना रूमी, साहिर, रूसी कवि रसूल हमज़ातोज़ पढ़ते रहता हूँ। और अश्लील गीत लिखने से इनकारी करते खुद ही लिख रहे हैं
आप ही सुना दीजिए। नहीं, आप सुना दीजिए, चलिए अच्छा मैं कुछ जी। और सुना दूंगा। कलम ने छोड़ी शर्म, अल्फाज नंगे हो गए। कलम ने छोड़ी शर्म, अल्फाज नंगे हो गए। गीत की इज्जत लुट गई सिक्कों के झंकार में। होता इस तरह से है कि आप जब किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, आप खासकर फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ इस तरह के आकर्षण होते हैं, इस तरह की खूबसूरत बलाएं होती हैं जो आपको, बलाएं से मेरा मतलब है लालच, इस तरह के होते हैं जो आपको आपके रास्ते से भटकाने की बहुत ज्यादा ताकत और कुव्वत रखते हैं। लेकिन मेरा ये दावा भी है और मेरा ये मानना है कि अगर आपके पांव जमीन पे लगे हुए हैं तो दुनिया की कोई बला आ जाए, आप कहीं भटक नहीं सकते। अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आप कहीं किसी भी चीज पे फिसल नहीं सकते। आप किसी मुद्दे पे, आप किसी मिशन के साथ, आपकी अपने आप के साथ कमिटमेंट है तो आपको आपकी जगह से हिला पाना बड़ा मुश्किल होता है। गीत लिखना मेरा प्रोफेशन है, लिखना मेरा पैशन है। लिखना मेरा पैशन है, गीत लिखना मेरा प्रोफेशन है। अगर मान लीजिए मैं अभी गीत ना लिख रहा होता, कुछ और कर रहा होता, मान लीजिए मैं किसी बैंक में जॉब कर रहा होता, बैंकर होता, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता, मतलब आप पीएचडी कर चुका हूं पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो पढ़ा भी सकता था किसी कॉलेज में, तब भी मैं लिखता। ऐसा नहीं है कि तब मैं नहीं लिखता, तब भी मैं लिखता। मैं और दूसरे लिखना, जब आप लिख रहे होते हैं तो आपकी कलम आपसे सवाल करती है कि मैं क्यों चलूं। क्या आपके पास जवाब होता है? अगर जवाब नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आप अपनी कलम के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर जवाब होता है कि मैं क्यों लिख रहा हूं, तो वो अपने अंदाज में चलती है, अपने आप में चलती है। जर्मन एक राइटर है रिल्के, उन्होंने अपनी किताब, एक है उनकी लेटर्स टू ए यंग पोएट, उसमें उन्होंने लिखा है कि तुम तब तक मत लिखना, तुम कविता तब तक मत लिखना जब तक कविता खुद तुमको अपने आप से लिखवा ना ले। वाह, क्या बात है। ये जब तक, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जब तक आपको लगे कि ये, अगर मैं विचार, ये बात अपने अंदर से निकालूंगा नहीं तो अंदर एक बेचैनी सी चलती रहेगी, एक तकलीफ चलती रहेगी, कुछ ना कुछ एक है जो कुछ जाहिर होना चाहता है, कोई एक्सप्रेशन है। और जब उसने खुद को लिखवा लिया, आप यकीन मानिए आपको बहुत सुकून मिलता है, आपको बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल सही। एक परफेक्शन आपको दिखाई देती है कि ओके, अब मुझे कम से कम ये कविता अधूरी हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से जो मैं आधा पौना सा हो गया था, मैं फिर से पूरा हो गया हूं। अरे वाह। तो ये मेरे लिखने के साथ रहता है। जैसे कुछ भी लिख, और मैं किसी एक विधा में नहीं लिखता, किसी एक विधा में नहीं लिखता इन द सेंस, मैं कविता ही नहीं लिखता, मैं गीत ही नहीं लिखता, मैं किताबें ही नहीं लिखता, मैं दैनिक भास्कर में मेरा कॉलम चलता है बंदिशों से परे, मैं सिर्फ वही नहीं लिखता, मैं सिर्फ लिखता हूं। सही है। विचार जैसा आता है, विचार ही विधा तय करता है कि आपने क्या, किस तरह का विचार है, ये किस तरह की बात है, तो वो उस तरह का अपना एक फॉर्म ले लेता है, उस फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कहानियों में कह सकते हैं, शायद कविता में नहीं कह सकते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कविता में कह सकते हैं, किसी एक ऐसे में शायद नहीं कह सकते। जी। But yet most of your songs, which are so beautiful, जो हमारे दिल को भी छू गए हैं, are so apt for the situation in the movie. तो वो फिर आप सिचुएशन दी जाती है आपको तो is it लिखते हैं। situational, like you said, it is a spontaneous overflow. हम तो कहते हैं of powerful feelings, but फिर भी आपके songs are so apt.
वो फिट आते हैं। एक अच्छा गाना, मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे गाने में कविता होती है कहीं ना कहीं छुपी हुई। आप जिंदा लफ्जों से लिखना बहुत जरूरी होता है। जिंदा लफ्जों से लिखना बहुत जरूरी होता है। जिंदा लफ्ज वो होते हैं जो जिन पे वक्त की गर्द नहीं बढ़ती। जिंदा लफ्ज वो होते हैं, जब से गांव से मैं शहर हुआ, इतना कड़वा हो गया कि जहर हुआ। अब ये मेरे नाम तू जीरो फिल्म के गाने की लाइनें हैं, और मेरा मानना यह है कि आज से 10 साल पहले अगर ये गाना लिखा जाता तब भी ये उतना ही सच रहता, और आने वाले 10 साल बाद भी ये बात उतनी ही सच All the रहेगी। wordings of नादान परिंदे अभी तक वो कर्म का जी हाँ, 100 दर्द बदन पे फैले हैं, हर कर्म के कपड़े मैले हैं। like it's या मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। ना बताओ कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू, जो रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। इतनी सी भी ना चली, कितनी खूबसूरत लाइन है। 2010 to now, 9 तेरी नजरों में है, वो अभी मैं जिक्र कर रहा था, तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम पास हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। जिंदा लफ्जों के साथ लिखना, और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात, अक्सर जब रेडियो पे ये गाना आज भी बजता है, भागे रे मन कहीं आगे रे मन। आपका कितने लोग मुझे बोलते हैं, और कितनी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि ये मेरी पहली पिक्चर का गाना है। अरे वाह, पहली पिक्चर, आप तब से लेके अब तक, तब तकरीबन मैंने कभी गिनी नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है कि मैं 50-60 पिक्चर कर चुका हूं। पहली पिक्चर का गाना अब भी बजता है। अब उसकी लाइन है कि वो, अब ये चमेली पिक्चर का गाना है, चमेली के कैरेक्टर को जो कह लीजिए एक शब्द चित्र जैसे बोलते हैं, वो बना रहा है। क्या लिखा है उसमें कि वो रोशनी वो आग है या फिर कोई चिराग है, वो रोशनी वो आग है या फिर कोई चिराग है, जिसे धीरे धीरे जलना है, जिसे इस तरह ही चलना है, किसी मोड़ पर वो आज भी कंदील सी जलेगी, इस शहर में वो धूप सी बेवक्त ही ढलेगी। उसी का गाना तेरी हो गई यार सजना वे सजना। जब 7 समुंदर डोल गया तू, जो तू आंखों से बोल गया, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। जो 7 समंदर डोल गया तेरे प्यार में ये बिन मोल गया। हाउ ब्यूटीफुल। तो उसमें अंतरे में लाइनें आती हैं कि तुझे भर लूं अपनी आंखों में, फिर इन आंखों को खोलूं ना। बोलू ना, तुझे भर लूं अपनी आंखों में, फिर इन आंखों को खोलूं ना, तुझे घोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना। बोलू ना। तो ये जब आप एक जिंदा एहसास के साथ लिखते हैं, आपको लिखना आसान है, लिखने में कोई मुश्किल नहीं है। सही, सच और जिंदा लफ्जों के साथ लिखना बहुत मुश्किल है। सफेद कागज से आज भी मुझे उतना ही डर लगता है जितना 20 साल पहले लगता था। जब सफेद कागज के ऊपर पड़ी हुई कलम के सामने मैं बैठता हूं, मुझे वही घबराहट होती है जो पहला गीत या पहली कविता लिखते हुए थे। तो ये लगातार इन गीतों का चलना, या वो जो एक रेंज होती है कि आपके गाने 16 साल के बच्चे को भी पसंद आ रहे हैं, और आप किसी अपने सीनियर से, अपने ही सीनियर से अपने फील्ड में मिलते हैं, वो भी आपकी पीठ थपथपाता है कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो वो खुशी एक अलग तरीके की खुशी होती है। आपको एक कविता सुनाता हूँ, सुनिए। सुनाइए। बेरियां सुनाता हूँ। इरशाद। ये बहनों को पहली बार इन्होंने अपनी बहनों को बेरियां बोला है। मैंने नहीं सुना कोई बहनों को बेरियां कहता है, और इतनी खूबसूरत लिखी है बेरियां। जी इरशाद। मैं आपको सुनाता हूँ, ये मैंने कभी कहीं सुनाई नहीं है,
इरशाद के बहुत सारे उसकी कलम के बहुत सारे पहलू हैं। ये पहलू कभी मैंने खोला नहीं। मेरे गीतों के बारे में बात होती है या और नज़्मों के बारे में बात होती है। ये हिंदी कविता का रंग है। शीर्षक है बेरियां। माए बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहां जानता है बेरियों के महत्व को। माए बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहां जानता है बेरियों के महत्व को। बेरियां होना चाहती हैं गांव की पगडंडियों की, तने पर पटके जाएं बस्ते तख्तियां, मैली किताबों के थैले, उछलें छोटे छोटे पत्थर। मई और जून की टिकी दोपहर में बेरियां देंगी बेरों से भी ज्यादा समृद्धियों के ढेर। पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, घर के मालिकों का जितना हक होता है बेरियों पर, उतना हक कभी नहीं समझती अपना घर पर। फिर भी फैलाती हैं जड़ें घर की नींव तक, कभी हवा के झोंके से गिराती हैं बेर। सभी घर वालों को कहां पसंद आते हैं पिछवाड़े की बेरी के बेर। पिछवाड़े की बेरी के बेर। बहने बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना। बहुत जरूरी मैसेज कर रहे हैं आप लोग क्या? बहने बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेरियों के चारों ओर चाहिए बाड़। बेरियां जब हो जाती हैं दीवारों से ऊंची तो झुक जाती हैं किसी दूसरे आंगन में। बेर भी हो जाते हैं उसी आंगन के, तना भी हो जाता है, जड़ें रह जाती हैं केवल इस आंगन के। बेरियां पीपल नहीं होती, बेरियां होती हैं। बेरियां पूजा नहीं मांगती, बेरियां प्रेम मांगती हैं, और बेरियां देती हैं बेर। क्या बात है। कुछ घर को छोड़कर मुंबई का सफर, और वो जब घर से भागे थे तो चंडीगढ़ में एक लड़की खीर का डब्बा लेके आई थी और 9.5 पन्नों की एक खत भी दे गई थी। कुछ कहेंगे? जी मैं बिल्कुल कह देता हूँ। ये होता है, मतलब आप के कुछ एहसास जब जाहिर हो जाती हैं, फिर आप उनको ना छुपाएं तो अच्छी बात है। अब मैं ऐसा कहूँ नहीं ऐसा कोई नहीं था, कोई खीर नहीं लेके आया था मेरे लिए, तो वो अच्छी बात नहीं होगी, वो झूठ होगी बात। वो लड़की न जाने कहाँ होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी, जिसकी आंखों में चाहत का मझधार था, अपना दिल जिसका बेहद वफादार था। आज फिर याद आई अचानक वही, जिसको भूले नहीं मेरे 14 बरस। बात बनके जो निकली ज़बां से कभी, अश्क बनके कभी जो गई है बरस। जहन के कागजों में जवां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। जिसके दीदार की ख्वाहिशों में गरक हो गए थे जवानी के सारे वरक। जिसके दीदार की ख्वाहिशों में गरक हो गए थे जवानी के सारे वरक। अपने घर के मसाइल में उलझी हुई, मसाइल प्रॉब्लम्स को कहते हैं, अपने घर के मसाइल में उलझी हुई बात करती भी थी तो नजाकत भरी। उस पे नजरें थी सारे शहर की, मगर आंख अपनी थी उस पे हिफाजत भरी। क्या बात है। उस पे नजरें थी सारे शहर की, मगर आंख अपनी थी उस पे हिफाजत भरी। जहन के कागजों में जवां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। खत आधे अधूरे से लिखती थी जो, जैसा चाहूं मैं वैसी ही दिखती थी जो। वो 9.5 पन्ने का जो खत था उस पे एक लाइन लिखी हुई थी, 9.5 पन्ने पे एक लाइन लिखी हुई थी, तुम्हारा जो दिल करे वो लिख लेना इस पे। खत आधे अधूरे से लिखती थी जो, जैसा चाहूं मैं वैसी ही दिखती थी जो। खत आधा थमा के जो हाथों में कह देती थी, खुद पूरा कर लेना, मेरे दिल में है क्या तुमको मालूम है। दिल की बातों से कागज को भर लेना, बातें मेरी तुम्हारी ज़बां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी।
क्या ये वही लड़की है जब आप 16 सेक्टर में स्कूटर चला के जा रहे थे? कहते 16 सेक्टर में एंटर करते ही मेरा दिल धौंकनी की तरह चलने लगा, ऐसा लिखते हैं, सही है साहब? देखिए ऐसा है, मैं बचपन में नहीं, जब मैं टीनेज में था तो थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करने लगा था, कुछ कुछ कहने लगा था। अब कहने लगा कुछ कुछ तो सबसे ज्यादा मेरी अम्मी को फिक्र हो गया। अरे ये लड़का तो कुछ लिखने विखने लगा है, कुछ शायर बनेगा, ये तो बड़ी, अब शायर मतलब ये तो आधा पागल तो वैसे ही है, वैसे ही घूमता रहता है ये, अब शायर बन गया तो ये तो और क्या हाथ से। तो वो हमारे यहाँ पे एक वहाँ थे हमारे कोटला में एक, वो भी थोड़ा बहुत लिखते थे, तो वो काफी लिखते थे, मतलब बुजुर्ग थे, तो वो हमारे यहाँ पे अक्सर आया जाया करते थे। एक दिन वो हमारे यहाँ पे आए तो मेरी माँ ने, अम्मी ने चाय वाय पिलाई उनको। 10 मिनट के बाद मैं कहीं बाहर से आया तो उन्होंने कहा इधर आ जरा। मैंने कहा नहीं, वो आए हुए हैं, जरा मिल ले उनसे। मैंने कहा चलो। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे कोई एजेंडा है उनका। तो मैं आदतन के कोई मेहमान आए हुए हैं, जैसे आप सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तो मैं उस अंदाज में चला गया कि चलो 2 मिनट। मैं जैसे ही गया मैंने उनको सलाम किया, जी अस्सलाम वालेकुम। साथ ही मेरी अम्मी भी आ गई कि वो ज़ौक़ तकल्लुस रखते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा ज़ौक़ साहब इसको बताइए, ये अभी से लिखने लग गया है, इसको समझाइए कि लिखने विखने से कुछ नहीं बनता। बेसिकली वो आप उनको कह रहे थे कि तुम्हारा कुछ नहीं बना तो इसका क्या बनेगा। तो उन्होंने, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इरशाद मियां ऐसा है, लिखना ऐसे ही नहीं आ जाता। मैंने कहा अच्छा जी, जब तक 100-200 प्रेम ना हुए हो, मोहब्बत ना हुई हो 100-200 और 60-70-80 बार दिल ना टूटा हो, तब तक बात नहीं बनती। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये भी करके देख लेंगे, उसमें क्या है। तो ये बात मतलब मुझे लगा कि ये जो आप कह रही हैं कि 16 सेक्टर, ये चीजें होती रहती हैं जिंदगी में। एक जरूरी बात यह है कि आप उस एक्सप्रेशन को कितने तरीके से निकाल पाते हैं अपने अंदर से। बिल्कुल ठीक। मोहब्बत करना यकीन मानिए आसान नहीं है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे आपने अपने आंगन में गुलाब का पौधा लगा तो लिया है, जितना आप उसका ख्याल रखेंगे उतना ही फूल देगा वो, वरना वो सूख भी सकता है ना। वो इसी सिलसिले में मेरी एक गजल का एक मैं आपको सुनाता हूँ। गालिब ने इश्क को आग का दरिया कहा है, आप जानते हैं कि पहुंचेगा ये इस तरह से है कि आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है। आग का दरिया सूख सकता है, करेक्ट बोलिए। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। बहुत खूब। साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है, यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है। क्या? तो आपका एक्सप्रेशन किस तरह से है, आप किस तरह से बातें करते हैं, भले आप अपने गीतों में हो या आपकी नज़्मों में हो या अपनी गजलों में हो, वो जरूरी बात होती है। और हर जब भी आप लिखते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी तो होती ही है। वो भले आप गीत भी लिख रहे हो, कोई ना कोई उसकी एक कहानी होती है। अब जैसे ये ही है भागेरे मन की इन्होंने बात की, वो सबसे पहली मेरी पिक्चर थी और अभी तक शुक्र मालिक का कि उसके गाने सुने जा रहे हैं, पिछले 14 साल से जिंदा है वो गाने। अब भागेरे मन लिखना था, मैं अंतरे पे फंस गया, मुझे नहीं आ रहा था, वो ख्याल ही नहीं आ रहा था, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी बात के कहना क्या है, करना क्या है। और वो करते करते अचानक से मुझे ये पता चला कि क्योंकि मैं नया हूँ, प्रोड्यूसर ये सोच रहा है कि अरे यार ये नया लड़का, इससे नहीं होने वाला है, कोई और ढूंढ लेते हैं किसी और। अब जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, संदेश शांडिल्य म्यूजिक डायरेक्टर, वो काफी मुझसे मुतासिर थे, काफी प्रभावित थे।
अब सवाल ये है वो मुझसे प्रभावित क्यों थे, इसकी भी एक अच्छी कहानी ये है। कहानी ये है कि पहले मैं उनसे मिलने के लिए, मैं लिखता हूँ गीत, ये मैं करने के लिए मुझे एटलीस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स से मिलना पड़ना था, तो मैं बड़ा थोड़ा हिचकिचाता हुआ सा जाता था उनके पास। तो किसी ने बहुत ज्यादा मुझे कहा कि आप संदेश से मिलो, संदेश बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ना करते मैं उनसे मिलने चला गया। मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा जी बताइए। मैंने कहा मैं इरशाद कामिल हूँ। हाँ, अच्छा। तो मुझे लगा ये भी कहेगा कि मिलते रहिए, तो फिर मिलते रहिए का मतलब ये होता है बॉम्बे में कि दोबारा मत मिलना। तो मिलते रहिए उन्होंने, मैंने कहा ये कहेगा, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा बैठिए सुनाइए कुछ। अब मैं बड़ा तैयार होके गया था, आप यकीन मानिए मैंने उन्होंने जो मुझे 10, 12, 15 मिनट दिए थे, मैंने उन 10, 12, 15 मिनट में अपनी 10, 12 गजलें पेल दी उनको। वो सुना दी और सुनाने के बाद वो काफी मुतासिर हो गए और बोले कि हम काम करेंगे यार, इकट्ठा काम करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। ये थोड़ी सी पहले की बात है, ये 14 साल पहले की बात है। मोबाइल नहीं, उस रात अच्छी नींद आई होगी जी। तो उनका कुछ मैसेज नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, मेरे पास लैंडलाइन था। और तकरीबन कह लीजिए हफ्ते 10 दिन के बाद उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा हेलो, मैंने फोन उठाया, जी इरशाद। मैंने कहा जी मैं संदेश बोल रहा हूँ। मैं कहा हाँ कैसे हैं सर, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा यार तूने वो एक सुनाया था शेर के, वो धूप का एक क्या था, कुछ धूप का जिक्र था उसमें। मैंने कहा हाँ आपने लिखा है तो आपको फटाक से याद आ जाती है वो बात। मैंने कहा जी वो ये ऐसे था कि धूप का एक टुकड़ा रहता है इन पलकों की छांव में, अच्छा खासा शहर बसा है एक छोटे से गाँव में। तो उन्होंने कहा हाँ यही, बहुत बढ़िया, थैंक यू। फोन रख दिया उन्होंने। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो मुझे फोन रख दिया। अब मैं थोड़ा क्यों फोन किया था मुझे नहीं समझ में आया। 3-4 दिन के बाद उनका फिर फोन आया। मैंने फिर फोन उठाया और फोन उठाने के बाद दूसरी तरह से हेलो इरशाद। मैंने कहा जी मैं संदेश बोल रहा हूँ यार। जी मैंने कहा कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अच्छा वो एक तूने सुनाया था वो पहले तो दिल में बस गया टाइप की बात थी। मैंने कहा हाँ जी हाँ, वो ऐसा था कि पहले तो दिल में बस गया ईमान की तरह, अब बात भी करता है तो एहसान की तरह। हाँ ये थैंक यू। ये उनका दिमाग चल रहा है, वो अपना गाना बना रहे थे। मैं पकड़ में अब ये दूसरी बात हो गई। अब मैंने कहा चलिए यार, मैं इतनी मतलब हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे कि मैं पूछूं कि आप क्यों सुन रहे हैं, बात क्या है, ये कहाँ जा रहे हैं हम। तो खैर ऐसे ही 3-4 दिन के बाद उनका फिर से मुझे ऐसे ही फोन आया लैंडलाइन पे। उसी तरह से मैंने फोन उठाया कि फिर मैंने कहा कि हेलो। उन्होंने कहा अच्छा इरशाद वो, मैंने कहा एक मिनट सर। कहते हैं हाँ सर, मैं आप जो कहेंगे मैं सुना तो दूंगा, पर मैंने कहा ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हम पहुंच कहाँ रहे हैं। कहते तुम नहीं पहुंच रहे गई, पहुंच मैं रहा हूं। मैंने कहा कैसे? कहते असल में यार मेरा ना अफेयर चल रहा है, मैं तुमसे शेर सुनता हूँ उसको सुना देता हूँ। क्या बात है, आगे पहुंचाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, चीजें, कहानियां होती हैं बहुत इंटरेस्टिंग हर चीज के पीछे, तो जिनके साथ मैंने कहा कि शुरुआत हुई। और ये जो किताब है ये भी इस तरह के गीतों की कहानियों की बड़ी मजेदार है जी, जरूर लेके जाइएगा। अब आप कोई किस्सा सुनाएंगे कि मैं कोई गीत सुनाऊं? जैसा आप मुनासिब समझें। एक करम फिल्म का गीत, बहुत खूबसूरत, अलीशा चिन्नाई ने गाया। मैं 2 लाइनें गुनगुनाऊंगी। तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। तिनका तिनका जरा जरा
है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, मुझको ही समझे जरा। अब इन्होंने ये गाना सुनाया, अब मैं इसका भी एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ आपको। किस्सा ये, मैंने लिखा था तिनका तिनका जर्रा जर्रा, वो पढ़ा हमने। मैंने ये लिखा था। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गाने वाले से वो जर्रा जर्रा गाया नहीं है। मैंने लिखा रहती है वो मोहब्बत जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतनी जल्दी आप ऑब्जेक्टिवली चीजों को देख पाएंगे, और जब आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे तब आपको लगता है कि अरे यार ये लाइन की तो जरूरत ही नहीं, ये मैंने क्यों लिखी, मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं इस लिखने में, मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं यहां से। तो वो एक आपको सेल्फ डाउट का थोड़ा सा अंश देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं होते हैं अपनी लिखतों में। जैसे मैं सेल्फ डाउट का सबसे मजेदार किस्सा या सबसे कह लीजिए लेटेस्ट किस्सा आपको बताता हूं। मैं, विशाल शेखर एक म्यूजिक डायरेक्टर है, यशराज का स्टूडियो बहुत बड़ा, मैं विशाल शेखर यशराज के स्टूडियो में सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं और पिछले 25 मिनट पे एक बात पे बहस कर रहे हैं, और बहस इस बात पे हो रही है कि हमने दिल दियां गल्लां कितना खराब गाना बनाया है। खराब बनाया। और ये बात हो रही है कि क्या गाना बदल दें यार, ये थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा कि थोड़ा सा ढीला लग रहा है यार गाना, थोड़ा सा यार इसमें म्यूजिक कम लग रहा है, थोड़े से अल्फाज ना यार और हम आगे लेके जा सकते हैं। हम 25 मिनट दिल दियां गल्लां पे बहस कर रहे हैं, और दिल दियां गल्लां अल्टीमेटली डायरेक्टर आ जाता है कि तुम लोग, रिकॉर्डिंग हो रही है और तुम लोग सीढ़ियों पे खड़े हुए, तो हम डायरेक्टर से बात करते हैं कि यार ऐसा लगता है कि एक गाना और ट्राई करके जरूर देखना चाहिए इस सिचुएशन पे। कुछ और बनाते हैं, कुछ और बनाने के बाद कंपैरिजन में देखते हैं चीजों को क्या दिखता है, क्या बेहतर है। हाँ, तो हमने किया भी, और करने के बाद हमारे सारे डाउट चले गए और दिल दियां गल्लां आप तक पहुंच गया। और मालिक का शुक्र, मतलब इससे ज्यादा यूट्यूब पे किसी गाने को सही कह रहे हैं, मतलब 600 मिलियन हिट होना किसी गाने का यूट्यूब पे एक मायना रखता है। अब ऐसे ही जिन्होंने ये गाना सुना है, अगर तुम साथ हो, तो अगर तुम साथ हो हमारा चौथा वर्जन है, 4th वर्जन। एक गाना हमने बनाया था, गाना बनाने के बाद अगर तुम साथ हो, वो गाना शूट हो गया। शूट होने के बाद जब वो गाना लगा के विजुअल्स के साथ उस तरह से पूरी तरह से देखा गया, मैं था, रहमान साहब थे, रहमान साहब के साथ मैंने, किसी ने बॉम्बे के लिरिसिस्ट ने इतनी पिक्चरें नहीं की। सबसे ज्यादा काम A.R. रहमान साहब के साथ जी, इरशाद। तो वो लगा, हमें लगा कि यार इम्तियाज ने तो बहुत अच्छा शूट कर लिया गाना, हम तो कम पड़ गए इसके सामने। अरे ये भी होता है, बिल्कुल होता है कि एक कम पड़ गए, मतलब इतने कमाल के विजुअल, इस पे तो जितने इंटेंस विजुअल हैं, इस पे तो और बेहतर गाना हो सकता है। लो, तो चलिए बनाइए। हमने बनाया गाना, वो भी वहां नहीं पहुंचा जहां हमें पहुंचना था। फिर एक और गाना बनाया, वो भी वहां नहीं पहुंचा जहां हमने पहुंचना था। क्या बात है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि उन गानों में कोई खराबी थी, उस कंपोजिशन में कोई धुन में कोई खराबी थी, या लिखा मैंने कुछ कम था। उस जैसे जो छोड़ा है, मैं उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ, आपको वो भी बेहतर लगेंगी उसी सिचुएशन पे। बात ऐसी है, वो 2 लाइनें ऐसे शुरू किया था गाना कि अब तेरे प्यार, ये आप सिचुएशन तो आपके ध्यान में होगी, वो सुन के रिलेट करके देखेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये उसी सिचुएशन की 2 लाइनें हैं। अब तेरे प्यार की कुछ जरूरत नहीं मुझे, अब तेरे प्यार की कुछ जरूरत नहीं मुझे, ये भी नहीं कि तुझसे मोहब्बत नहीं मुझे। क्या हुआ? ये भी उतना ही, जैसे आप देखिए सिचुएशन पे फिट बैठती है बात, पर हमें लगा कि
नहीं, कोई एक और जगह है जहां हमें पहुंचना है, कोई एक बुलजाई है जिसको हिट करना है। तो ये चौथी अटेम्प्ट में हम अगर तुम साथ हो तक पहुंचे हैं। वाह, तो ये गाना लिखना या सिचुएशन निभाना, जैसा मैम ने कहा था कि आप सिचुएशन भी निभाते हैं, सिचुएशन एक चीज होती है, गाना एक दूसरी चीज होता है। गाने में अगर अपनी वैल्यू नहीं है और तो वो गाना इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं करता आपके माइंड में। जैसे आप कभी किसी शाम कोई एक गाना सुनना चाहते हैं तो आप सुनते हैं एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे ही, कि यार ये गाना मैं सुनना चाहता हूँ तुमसे ही, आधा सवादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लो इस तरह वफा का, तोड़े ना टूटे कभी, छोड़े ना छूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही। जब भी मैट का गाना था, ये आप सुन सकते हैं। अब इसको पिक्चर के अलहदा गाने की एक अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू है, लेकिन जब आप पिक्चर के साथ उसको जोड़ के देखेंगे तब भी वो गाना पिक्चर के साथ उतना ही आप इंटरप्रेट उन विजुअल्स को करता, उस कहानी को, उस कैरेक्टर को इंटरप्रेट। बहुत खूबसूरती से। अब मैं गाऊंगी इसको। जी हाँ जी। ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है। अब ये गाने का कुछ गानों के पीछे कहानियां होती हैं, कुछ गानों के आगे भी कहानियां होती हैं। अब इस गाने की मैं आपको कहानी, बहुत बहुत खूबसूरत बात यह है कि आप किसी को जानते हो ना जानते हो, अगर किसी वजह से किसी बातचीत में ये पता चल जाए कि अरे ये गाना इस आदमी का लिखा हुआ है, तो अननोइंगली एक कनेक्शन बन जाता है आपका उस इंसान के साथ। मैं एयरपोर्ट लॉन्च में बैठा, फ्लाइट के का वेट कर रहा था। अब आप प्रीतम वाला किस्सा कहने वाले ना? नहीं, मैं ये तुमसे ही वाला किस्सा सुनाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कैसे कैसे आप अपने लफ्जों को अपने तरीके से, अपने एहसासों के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो वो एक महिला आई जो काफी उस तरह की थी, जैसे कह लीजिए टिल्टेड टुवर्ड्स खुदा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थी। तो उनके साथ एक दो उनके वो भी थे, जैसे कहते हैं सेवक। तो वो आई, वो भी लॉन्च में बैठ गई, मैं भी बैठा था, तो और भी 2 4 5 लोग बैठे थे। तो वो आई और उन्होंने सबको छोटी इलायची बांटनी शुरू कर दी। तो मुझे लगा कि यार ये अगर मैंने इनसे ले लिया प्रसाद के तौर पे, तो ये ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रवचन सुनाने लग जाए। तो मैं थोड़ा डर गया है, ईमानदारी से बताऊं। डर मैं इस वजह से गया कि मैं उस मूड में नहीं हूँ, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। तो मैंने बड़ा थोड़ा हिचकिचाहट के साथ, नहीं मैम नहीं, ले लो ले लिया। अब वो अगला उनका राउंड शुरू हुआ, तो वो सबसे पूछने लगी। उनका काम, मतलब मुझे जो लगा कि वो सबको ये पूछना चाहती है, एक होता है ना कनेक्शन बनाना चाहती है। तो उन्होंने सबसे पूछा, अच्छा आपका क्या नाम है? किसी ने बताया। क्या करते हैं? वो जो भी करते थे उन्होंने बता दिया। अच्छा ये है वो। फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर मेरी बारी आ गई। तो मैं जनरली जो मुझे नहीं जानते हैं लोग, मैं नहीं बताता मैं क्या करता हूँ। मैं कुछ भी बोल देता हूँ कि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो बैंक में काम करता हूँ, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता जी, मैं तो काम ढूंढ रहा हूँ। ऐसी टाइप की बात कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे कन्वर्सेशन में आगे न जाना पड़े ईमानदारी से। तो मुझे कन्वर्सेशन में आगे नहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि ये तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेडी है, इनको अगर मैं बोलूं कि मैं तो फिल्म वाला हूँ, मुझे छोड़ दो आप, तो ये मुझे छोड़ देगी। तो उन्होंने पूछा आप? मैंने कहा जी मेरा नाम है इरशाद।
अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? मैंने कहा जी मैं तो गाने वाने लिखता हूँ, मैं तो मतलब फिल्मों में गाने लिखता हूँ। अच्छा, वो बाकियों से ज्यादा मुझ में इंटरेस्टेड हो गए। कौन सा गाना लिखा है आपने? कौन सी फिल्म? अब मुझे इमीडिएटली कुछ ऐसा मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये सवाल आएगा, तो मुझे याद ही नहीं आया अपना ही गाना कि मैंने कौन सा लिखा है। तो ये गाना मुझे याद आया, तो मैंने कहा जी वो मतलब वो जब भी मेट का तुमसे ही मैं, जब भी मेट सारी मैंने लिखी है, तुमसे ही मैंने। एंड बिलीव मी, उन्होंने कहा तुमसे ही आपने लिखा है? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने 5 सेकंड का पॉज लिया। वाह, मैं भी थोड़ा सा हैरान रह गया। कहती आपको पता है ये गाना तो मैं सुबह आरती में रोज गाती हूँ, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे। ये तुमने कभी नहीं सोचा हो। सोचा ना था। जी देखिए, और उनकी मुझे उस टाइम पे इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत नहीं लगी कि हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही। ये वाकई हम भी कभी नहीं सोच सकते ऐसा। जी बहुत बढ़िया था, कैसे बताएं क्यों तुम, क्या वर्डिंग्स हैं जी 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 एंटायर सॉन्ग के। जी जी जी। अच्छा, जब भी मेट में वो कितना मजेदार है, जग सारा निखर गया। हाँ, पंजाबी मैं आपको बताऊं बड़ी अच्छी है। मैं यहाँ पे हूँ अमृतसर में बैठा, मैं पंजाबी बोल ही नहीं रहा, पंजाबी बोलनी चाहिए। पंजाबी बोलो जी। जी जग सारा बहुत, मैं एक्चुअली चक्कर की मैं पंजाबी बोलना थे प्रॉब्लम थोड़ी सी, मतलब क्योंकि कलम है तो मैं ऐसा थोड़ी सी बोल देता हूँ, फिर मैं माफी मांग लूंगा। मैं जब तक गया नहीं था बम्बई, मुझे बीइंग ए पंजाबी बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी कि पंजाबी गाने नी सोनिया मखना वे से आगे जा क्यों नहीं रहे हैं यार। मतलब इतने ही लफ्ज रह गए पंजाबी में यार, मतलब इतना बड़ा रिच लिटरेचर है यार पंजाबी का, और इतने बड़ी बड़ी बातें कही हुई हैं, ये कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। और वो भी गलत, मतलब नी और वे भी कोई जेंडर देख के लगाया जाता है, वो बिना जेंडर देख के ही जहां नी और वे भी लगा देते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये बदलूंगा जाके। अरे वाह। और ये मुझे मौका मिला, ये 1900 तकरीबन 50s में 1950s में एक गाना आया था कि मैं झूठ बोलिया जाते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, राइट, कि मैं कुफ्र कुफर बोलिया राज कपूर साहब की पिक्चर थी। जी जी। जाते रहो। इकलौता गाना, उसके बाद से प्योर पंजाबी गाना हिंदी फिल्म में आया ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं लिखता हूं। तो मैंने जब भी मेट में ये गाना लिखा है, मौजा ही मौजा। तो माही उस तब मैंने लिखा माही मेरा शरबत वर्गा वे माही तेनू गट गट पीला। वो माही मेरा सोने वर्गा ओ माही तेनू चुम चुम रखना। तो वो जो एक फुल ऑन पंजाबी गाना पूरी पंजाबियत के साथ, और थोड़ा सा एक टच ऑफ जिसे कहते हैं एक अदब का मोर देन अदब के साथ, और वो पैन इंडिया, मतलब ये मौजा ही मौजा, मतलब आप देखिए कश्मीर से लेके बंगाल तक, कन्याकुमारी तक वो गाना इतना बड़ा सूट ही बड़ा करता जी इंडिया को, मौजा ही मौजा। बाहर भी बहुत चला जी, मतलब वो इतना बड़ा गाना हिट हुआ। तो वो उसके बाद मतलब एक क्या कहते हैं कि मैं झूठ बोलिया के बाद ये प्योर पहला पंजाबी गाना किसी टोटल कमर्शियल हिंदी पिक्चर में रहा। जग सारा निखर गया, हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया। जग सारा निखर गया, हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया। दिल मेरा होई जाए अंबरां नूं छोई जाए, मार उडारी देखो किधर गया। हुण मौजा ही मौजा, यार दे डेरे हुण मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा। तो वो फिर वो पंजाबियत का जो एक हल्का सा चीजें शुरू हुई, फिर वो धीरे धीरे करके, और जैसे कहते हैं ये तो पंजाबी स्वाद तो एक लाग की तरह होता है ना, लाग लग जाती है जिन्होंने कहते हैं, वो लाग लगती गई फिर बाकियां भी। और वो इवन मैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पंजाबी
ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, फोन करके पूछ लिया करो। अच्छा ये बताओ, ये रंगपुरे दी रंग रंगीली लड़की छैल छबीली, ये तुम्हारे दिमाग में जहन में फुरता कैसे है रंगपुरे की? अब ये रंग फुरता कैसे है ये तो मुझे नहीं पता। हमें नहीं समझ आता क्योंकि हम ऐसा रंगपुरे दी रंग रंगीली लड़की छैल छबीली चंचल नैन कटार ते उसका रूप बना हथियार, उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ और फिर एंड में नगाड़ा लगा दिया। हाँ जी, है बताओ। मतलब जब चर्चा हो जाती है फिर तो वो वो कहते हैं ना मुनादी हो जाती है ना, फिर जब मोड़ पे मोहल्लों पे बात शुरू हो जाती है तो फिर तो मुनादी शुरू हो जाती है। हाँ, मुनादी। देखो ना कैसे कैसे लफ्ज है, पता नहीं तुम्हें निकलते कैसे ये बाहर, जरा ये बताएं। अब मैं बड़ा अक्सर बात करता हूँ इस बात को। देखिए मेरी पढ़ाई थोड़ी हिंदी की पढ़ाई है, हिंदी की पढ़ाई इन द सेंस मैंने कविता पे पीएचडी की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से, समकालीन कविता पे, तो वो हिंदी की पढ़ाई है। और मेरी माँ जो है वो पंजाबी है, और जो कह लीजिए महबूबा है वो उर्दू है। वो एक शेर भी है कि किसनु मैं अपना कहा किसनु कहा बेगाना, पंजाबी जो है माँ मेरी, उर्दू मेरी माशूक है। तो ये उसका अमल का मिशन कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, जिसमें हिंदी भी है जो आपने बाकायदा से पढ़ी। मैं अक्सर इस बात को ऐसा कहता हूँ कि एक पंजाबी माँ ने एक बच्चा जना और उसने उर्दू के साथ खेलने के लिए भेज दिया। उर्दू के साथ वो थोड़ी देर खेलता रहा बच्चा, जब उर्दू को लगा कि अब इसको रोजी रोटी की भी थोड़ी चिंता करनी है और उसके बारे में भी सोचना है, तो उसने मेरा हाथ हिंदी को थमा दिया। अब उसके बाद फिर वो जो वोकैबुलरी बनती है या वो जो अल्फाज आते हैं या जो वो अभी, जैसे आजकल मैं अभी बता रहा था, अभी मैं थोड़ा सा फारसी सीखने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो जबानों के साथ मुझे मोहब्बत है और जबान के साथ मुझे लगता है जुड़े रहना एक जरिया बनता है अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहने का। और लव आजकल में कदी इतिहास बोल वे न जिंद साडी रोल वे, तू आजा दिल जानिया तू कर मेहरबानिया, असानू तेरी लोड़ वे न जिंद साडी रोल वे। जी, तो हम लव आजकल के प्रमोशन के लिए बिग एफएम रेडियो है, वहां पे गए हुए थे। वहां पे गए तो डायरेक्ट कॉल हम जैसे लेते हैं, कॉलर्स ले रहे थे डायरेक्ट कॉल, तो एक फोन आया। तो अब इम्तियाज के लंबे बाल हैं और प्रीतम के भी लंबे बाल हैं, और कुदरती प्रीतम का नाम ऐसा है जो बहुत पंजाबी है ना, लेकिन वो खुद पंजाबी नहीं है, वो प्रीतम चक्रवर्ती है, वो बंगाली है। तो वो डायरेक्टर जो वो कॉलर थे, उन्होंने आओ देखा ना ताब, उन्होंने डायरेक्ट हमसे ये सवाल किया कि जी ये प्रीतम सिंह जी का तो पता है। उनको लगा कि उसने खोल दिए हैं बात कि प्रीतम सिंह जी का तो पता है और इम्तियाज जी भी पंजाबी हैं, आप इरशाद जी फैजाबाद से कब आए? मैंने उससे पूछा कि मैं फैजाबाद गया कब था यार, पहले ये बताओ। तो मैंने कहा मैं ही इकलौता इन दोनों नकली पंजाबियों में असली पंजाबी हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये इस तरह की चीजें, इस तरह के किस्से चलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा हर गाने के साथ साथ और हर लिखने के साथ साथ। अच्छा फिर देखिए इसी फिल्म में वो लव आजकल में इन्होंने एक बटालवी की लाइन ली है जी, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। अब ऐसा खूबसूरत गाना बन गया उससे जी। और फिर नए गानों का जिक्र करेंगे। टाइगर जिंदा है, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। कितना खूबसूरत गाना है। इश्क दी चाशनी, आई थिंक हम सब सुनते हैं, मैं गा नहीं पा रही हूँ। एक हवाएं का जिक्र है नए गानों में से, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, वेरी वेरी पॉपुलर। जग घूमिया
तारे जैसा न कोई। और कबीर सिंह ने शाहिद, नई फिल्मों में से, और भारत में सलमान खान, और जीरो में शाहरुख खान। ये इरशाद जी के कमाल हैं सारे। उनके तो सारे मेरे ख्याल गानों में- कबीर सिंह का काफी होता है। मैं ये बात इसके बारे में भी यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है। 2 मिनट लूंगा, मैं जानता हूँ वक्त हो चुका है, बस 2 मिनट में मैं बात खत्म करूंगा। वो बात ये कि ये आज दिन चिड़िया तेरे रंग वर्गा एक बड़ा जिम्मेदारी वाली बात थी। सबसे पहली बात, वो शख्स जिनसे मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से हर पंजाबी मोहब्बत करता है, उसके आप 6 लफ्ज ले रहे हैं, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। अब भी ये अगर आपको चाहिए तो ये आपको बाकायदा लीगली चाहिए। वो अभी उस एज में नहीं पहुंचा है जिस एज में गालिब पहुंच गया हो कि चलिए गालिब की कोई बात आपने ले ली। अब हमने ये 6 लफ्ज लेने के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में दीपक मनमोहन एक हैं, हाँ जी, मैंने उनको अप्रोच किया कि मुझे अर्ना जी से बात करनी है, मेहरबान से बात करनी है मुझे। और मैंने उनको ये बोला कि मैं ये 6 लफ्ज लेना चाहता हूँ और जरूरत इस वजह से है, पिक्चर का नाम है लव आजकल। तो आज में तो मैं लिख लूंगा किसी तरह से, वो कल का एक थोड़ा सा टच दिखाने के लिए मुझे कोई 70s में तो पंजाब में तो शिव ही शिव हैं, अब भी शिव ही शिव है, तो वो मुझे उनका एक रंग देना है जरा सा। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा नहीं, रहने दे। मैंने कहा जी मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक बार मुझे अटेम्प्ट करने दीजिए, फिर उसके बाद मैं सुनाऊंगा। अगर आपको लगा कि नहीं आपको ये ठीक नहीं है, मैंने वो इज्जत नहीं रखी, तो आप बेशक, हाँ मुझे बेशक आप मना कर दीजिएगा, इतना तो मुझे मौका दे दीजिए। अब उनके कहने पे दीपक मनमोहन जो थे वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के ही थे, तो उनके कहने पे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तू लिख ले। अब मैंने बड़ी एक प्रेशर में जिसे कहते हैं कि ये 6 लफ्ज मुझे निभाने हैं, तो निभाने के लिहाज से मैंने वो गाना लिखा। लिखने के बाद मैंने उनको सुनाया और आप यकीन मानिए बहुत खुश हुए वो। और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी यही बात की कि ये जो तुमने आखिर में लिखा है ना, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, बहुत बहुत अच्छा है। तो हमने बाकायदा फिर सीडी पे ये खास तौर पे मेंशन किया कि ये जो हैं 6 लफ्ज वो शिव कुमार बटालवी साहब की हैं। मुझे पहला फिल्म फेयर मिला तो मैंने पहला फिल्म फेयर शिव कुमार बटालवी साहब को डेडिकेट किया। आई थिंक सवाल के लिए कुछ समय रखें। मैं पंजाबी की गल करांगा जी जी प्लीज। थोड़े जिन्ना लिटरेचर ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ 19 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਵ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਸੀ ਸਿਮਲੀਜ਼ ਜੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਔਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਲੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਫਾਇਆ ਜੀ ਜੀ, मेरा ख्याल है कि अज तक साहिल लुधियानवी तो बाद कोई कवाली वधिया नहीं लिख सकिया और मैं ਉਹਦਾ फैन ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂ। थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ शैलेंद्र अवार्ड भी मिल गया, जिन्होंने साहिल लुधियानवी अवार्ड भी मिल गया ते कैफी आजमी अवार्ड भी मिल गया। मोर देन अवार्ड आई फील के ये किते बैठे हो शायद मैनू आशीर्वाद मेरी दुआं दी तरह मैनू भेजते हैं कि काका वधिया काम कर रहे हैं, तू लग्या रह। There is no question as such, but the session is so beautiful, I don't want it to end. थैंक यू very much। सर आपने नज़में भी लिखी हैं, 1 महीना नज़्मा जी चर्चा कीजिए थोड़ी जी।
एक महीना नज़्मों का एक मेरी किताब है बिल्कुल, और वो बड़ी मेरी जो किताबें हैं जी, मैं ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। एक महीना नज़्मों का किताब ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ एक महीना नज़्मों का? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 62 ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 31 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ देखियो तुसी 30 दिनों बाद की होता है। एक महीना का जिक्र किया, 3 महीने लगा देना तुम बदल जाओगी। तो उसी में एक नज़म है मेरी, निम्मो। हाँ जी, निम्मो नज़म है मेरी के गांव की गलियां पूछ रही हैं कहाँ रहे तुम इतने दिन। गांव की गलियां पूछ रही हैं कहाँ रहे तुम इतने दिन। निम्मो की तो शादी हो गई, निम्मो की तो शादी हो गई, हार गई थी दिन गिन गिन। बहुत देर तक रास्ता देखा, गांव को खुद पे हंसता देखा। उसे यकीन था लौटोगे तुम तो हो गए शहर में ही गुम। टूट गई फिर वो बेचारी, इंतजार में सब कुछ हारी। खुद से खुद ही गई वो छिन, कहाँ रहे तुम इतने दिन। एक मोड़ से मिला था कल मैं, उसके पास रुका एक पल में। एक मोड़ से मिला था कल मैं, उसके पास रुका एक पल में। पूछा कैसे हो तुम भाई, कैसे इतने साल बिताई। मोड़ बूढ़ा सा हुआ पड़ा था, लेकिन अब भी वहीं खड़ा था। मोड़ बूढ़ा सा हुआ पड़ा था, लेकिन अब भी वहीं खड़ा था। मुझको वो पहचान न पाया, मैंने अपना नाम बताया। मोड़ खुशी से झूम उठा तब, बोला पढ़ा है तेरे बारे में सब। मोड़ खुशी से झूम उठा तब, बोला पढ़ा है तेरे बारे में सब। हो गए हो तुम बड़े आदमी, इंसान हो या फल हो मौसमी। एक साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। क्या बात। एक साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। निम्बो ये बोला करती थी, जाने कैसे जरती थी। निम्बो ये बोला करती थी, जाने कैसे जरती थी। चली गई वो अब लेकिन, मोड़ भी मुझसे पूछ रहा था कहाँ रही तुम इतने दिन। निम्बो गांव की सड़क थी कच्ची। नज़म अब करवट बदल रही है। निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, जिसको मेरे बिन रोना था। एक दिन पक्का होना था, अच्छा हुआ कि पक्की हो गई। गांव में चलो तरक्की हो गई, हाँ पर मेरी निम्मो खो गई। अरे वाह, क्या बात है। एक छोटा सा प्रपोजल दूं। एक प्रपोजल मैं दे रही हूँ भाई, मेरे साथ चलिएगा। ये इरशाद तो सही है, लेकिन कमाइल का आई बदल के ए कर दूं, ये बंदा कमाल है। पता है तो उसके लिए at times you get stuck on a song or what you are writing because you need to rhyme it, तो उससे कभी कभी flow of the thought या कुछ। राइमिंग मुझे लगता है सेकंड पार्ट ऑफ द राइटिंग है। फर्स्ट पार्ट इज थॉट। If there is no thought, rhyming will not work. Rhyming is like a wrapper to any gift. If there is no gift, then what is the value of wrapper? क्या बात है। आपने लफ्जों की ताजगी के बारे में बात की, मुझे लगता है कि आपने ख्याल की ताजगी जो है जी, लफ्जों की ताजगी अपने आप आ जाती है। ये भी खूब लिखते हैं। जी 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 बिल्कुल। और वो जो ख्याल की ताजगी है आपकी, आई थिंक दैट इज अ रियल कंट्रीब्यूशन इन टुडेज वर्ल्ड, जो आपकी राइटिंग चल रही है आजकल। जी जी ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅਫਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਦੈਟ ਤਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਜੀ 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 ਮਨੋਚੀ ਇੱਕ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਪ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। So you maintain that. I think that is what
तो मैं दस ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ के आगे हर एक मंजर रेत की तरह बिखर रहा है। ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਕਮਰਸ जो है कमर्शियल गाने दियां लाइना ने कि नजर के आगे हर एक मंजर रेत की तरह बिखर रहा है, दर्द तुम्हारा बदन में मेरे जहर की तरह उतर रहा है। क्या बात है जी। इरशाद जी म्यूजिक डायरेक्टर होता है, मूवी डायरेक्टर होता है और लिरिसिस्ट होता है, तीनों का विजन एक सिचुएशन को हैंडल करना होता है तब आप लिखते हैं। कभी हुआ कि आपने अपना 100% दिया है और ऑपोजिट एंड, क्योंकि वो भी उसको एक डिफरेंट नजरिए से शायद देख रहे हो, क्लैशेस होते हैं और आप उसको कैसे वो कॉम्प्रोमाइज कहाँ से फर्स्ट स्टेप आता है इन दीस 3 रोल्स? एक्चुअली ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। इसमें मिलेगा आपको। हाँ, आप सब ज़हीन लोग हैं। आपको बताऊं, हम लड़ते हैं, हम 3 दिन एक दूसरे के साथ बोलते नहीं है, हम एक बात पे एक लफ्ज को लेके एक कंपोजिशन के एक उसको लेके कह लीजिए कि ये मैंने अगर मान लीजिए कंपोज ऐसे हुआ है कि एंड में उसको थोड़ा लंबा जाना है और मैंने कोई बंद लफ्ज दे दिया। फॉर एग्जांपल बंद लफ्ज से मेरा है जैसे बस को आप लंबा नहीं खींच सकते, जाऊं या आऊं को आप गाते हुए लंबा खींच सकते हो। अगर मेरी थॉट में बस आया है और उसको कंपोजर को जाऊं चाहिए तो इस पे बहस होती है। सिचुएशन कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर खुद सिचुएशन गाने वाले मतलब मैंने गाना लिखा तो उसको और ज्यादा क्लियर हुई कि ओह अच्छा ये कहना चाहिए, ये नजरिया है इस सिचुएशन को देखने का। जैसे आपको ये वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं बहुत सारी चीजें बता पा रहा हूं आपको। जैसे आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अगर तुम साथ हो, ये पहले की बात कर रहा हूँ। आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा पूरी पिक्चर बन चुकी थी, गाने शूट हो चुके थे, फर्स्ट कट जिसे बोलते हैं एडिट का, वो देखने के लिए मैं और प्रीतम गए थे एडिट रूम में। उसके बाद हमें लगा कि यहाँ तो गाना आ सकता है, उसके बाद हमने गाना लिखा था। वो टाइम भी देखना है ना, फिल्म कितनी लंबी हो रही है, कहाँ फिट करना है, तो ये अरे बहुत डिटेल्स है। हम तो कभी सोचते ही नहीं इन बातों के बारे में। गाना बहुत मतलब एक लड़ाई होती है और जहाँ दो कह लीजिए सोचने वाले दिमाग होते हैं तो विचारों का एक आदान प्रदान कह लीजिए, उसको एक वैचारिक लड़ाई कह लीजिए, मतभेद कह लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों ही लोग करना तो किसी पर्टिकुलर पिक्चर के लिए बेहतर ही चाहते हैं ना तो मैं चाहता हूँ कि मैं खराब लिखूं, ना म्यूजिक डायरेक्टर चाहता है कि वो कोई खराब म्यूजिक दे, ना डायरेक्टर चाहता है खराब पिक्चर। तो आप लोग डालते हैं। मैं अब सोच रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द एक्टर्स एंड द डायरेक्टर्स, एक बिहाइंड द सीन्स, इवन फ्रॉम अ स्पॉट बॉय टू व्हाटएवर, एक्चुअली आगे आना चाहिए। हमें तो अब लग रहा है कि honestly ये movies were useless without these songs. I mean they were good, but it were the songs which आप जान होते हैं फिर जान हम एक नींव होती है, उसकी ईंट होती है। एक मूवी के बाद हमें दिक्कत की क्या बात है कि नीम की ईंट कोई नहीं देख पाता, बुर्जियां सबको नजर आ जाती। हमारा समय अब इजाजत नहीं दे रहा और शीतल चाह रही हैं कुछ कहना। The small memento. And thank you, Mrs. Jasmeet Nair, for leading the dialogue. I take this opportunity to also thank our hospitality partners, Taj Swarna, and our media partners, Dainik Jagran and the Tribune. The event wouldn't have been possible without your support and cooperation. Thank you, everyone. You can all collect your books from the table there and get it signed by Shaji. And folks, we have a gift for the best questions. Yes.
बहुत शुक्रिया प्रभा खेतान फाउंडेशन के सौजन्य से अमृतसर में एहसास वुमेन ने जो कलम करवाया है, उसमें आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का ये जो जरिया बनाया है, ये जो तरीका बनाया है, ये बहुत ख़ास भी है और एहसास से भरा हुआ भी है। इसके लिए मैं एहसास वुमेन अमृतसर को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ उनको, और प्रभा खेतान के संदीप भतौरिया साहब का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया है, इस तरह की एफर्ट की है, जिससे एक लेखक रूबरू होता है सुनने वालों के साथ, ज़हीन दिमागों के साथ, और अपने एहसासों को बांट पाता है, उनके साथ बात कर पाता है और उनकी बात सुनने के बाद अपनी कलम में सुधार कर पाता है। तो ये कलम का बहुत शुक्रिया, कलम अमृतसर का, और दैनिक जागरण का बहुत बहुत शुक्रिया, एहसास वुमेन अमृतसर का बहुत शुक्रिया, प्रभा खेतान का बहुत शुक्रिया। ये इवेंट, ये सारा आयोजन मेरे लिए बड़ा ही यादगारी आयोजन रहा, क्योंकि इसके ज़रिए मुझे कुछ नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, कुछ नए रोशन दिमाग मेरे सामने आए, कुछ अच्छी बातचीत हुई और कुछ अपनापन मिला, कुछ मोहब्बत मिली। और ख़ास कर हम जो लिखने वाले होते हैं उनको यादें बहुत ज़रूरी भी होती हैं और चाहिए भी होती हैं। तो ये भी मेरी यादों में एक शाम हो गई है, जिसके ज़रिए ये यादें कहाँ निकल पाएंगी, किस तरह से मैं इनको अपने लफ्ज़ों में, अपने लिखतों में ट्रांसलेट कर पाऊँगा, ये इमीडिएटली कहना बहुत मुश्किल है, पर यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं मेरे लिखने में आपको ज़रूर दिखाई देंगी शाम। और जिस तरह से खूबसूरती से ये सारा आयोजन ताज स्वर्णा में हुआ है, और जिस तरह की एक वार्मथ, एक अपनापन, एहसास अपनेपन का ताज वालों ने दिया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।